Yes, class. In today class, we start lesson number 2, food and health. In this chapter, we learn about what is food. Food, whatever we eat and drink, is called a food. Food gives us energy and help to keep healthy. First question is, before starting this chapter, we want to keep fit. What we can do? क्लियर हम क्या करेंगे अगर हम चाहते हैं हेल्दी रहना हाँ वी वांट टू कीप अस फिट वी डू एक्सरसाइज वी डू सम प्ले आउटडोर गेम्स वी ईट हेल्दी फूड टू मेक themselves fit clear when we do exercise regularly we are able to intake more oxygen and exhale more carbon dioxide क्लियर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करते हैं इनटेक करते हैं जिससे क्या होगा आवर ब्लड सर्कुलेशन लेवल इज गुड क्लियर व्हेन वी ईट अ हेल्दी फूड when we eat a healthy food what is healthy food which food contain all nutrient in our food जितने भी nutrient हैं वो सब हमारे food items में food में present होंगे तो it is a healthy food clear जब हम healthy food लेंगे तो हम क्या होंगे fit रहेंगे healthy रहेंगे where we get from हमें food जो है where we get from get a food हम food कहाँ से लेते हैं we get food from plants and animals we read yesterday class some food items just like a bread, juice, fruits, vegetables we get from plants and some are the example milk, egg, meat we get from animals. Food are different type of food contain a different type of nutrient. Nutrient gives us energy. Nutrient help in a growth and nutrient also help in protect our body from diseases so our 6 type of nutrients are there first is carbohydrate second one protein fat vitamin mineral and last one is roughage clear carbohydrate is energy giving food what their sources is wheat rice corn bread potato and sugar are some sources of carbohydrate food clear second one is fat fat is also an energy giving food but when we compare fat and carbohydrate fat is giving a more energy comparison to carbohydrate clear what are their sources is milk oil ghee butter cheese and dry foods clear when we intake a high amount of fat when we intake a high amount of fatty food can cause obesity अगर हम ज़्यादा fatty food को when we eat we it's cause a obesity means मोटापा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ प्रोटीन हेल्प करता है ग्रोथ में सो वी कॉल्ड अ बॉडी बिल्डिंग फूड व्हाट सोर्सेज आर प्रोटीन फूड वी गेट फ्रॉम मिल्क पनीर pulses bean eggs and meat are some sources of protein next one is vitamin and minerals both are both food we call a protecting food because they help protect our body against disease clear what the sources of vitamin and minerals fruit vegetables and milk are some sources of vitamin and minerals we get there vitamin and mineral vitamins are different type vitamin a vitamin b complex vitamin c d e and k Vitamin C help us to gums healthy and mineral examples are iron, calcium, phosphorus, etc. Clear? Next one is roughage. Roughage is last dietary. Roughage is also called a dietary fiber. It help get rid out of the waste in our body. जितना भी waste product है ये हमारी body से outside करने में क्या करता है help करता है. One more thing is very important include in our diet. This is a water. क्या होगा? Water होगा. Water क्या help करता है? Water हमारे body के temperature को maintain करने में क्या करता है? Help करता है.
क्लियर है। नेक्स्ट, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनको भी रेगुलर फॉर्म में करने में भी वाटर क्या करता है, हेल्प करता है। जितने भी ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से आउट करने में भी, उन चीजों को बाहर निकालने में भी वाटर क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। क्लियर है, बाय यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू ये हमारी हेल्प करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। व्हाट इज डाइट? Diet, whatever we eat in a day is called a diet. We take a breakfast, we take a lunch, we take a dinner also. So whatever we eat and drink we take in our diet is called which we take in our plate is called a diet. When our food contain all type of nutrient required our body, हमारी body को जितने भी nutrient क्या हो require होते हैं वो क्या हो, अगर हमारी बॉडी को मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। हमारे हर पर्सन टू पर्सन जो बैलेंस डाइट है वो डाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। और चिल्ड्रंस की ग्रोथिंग एज होती है, इसीलिए क्या होगा, उनको किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, विच न्यूट्रिएंट दे रिक्वायर अ प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फैट। वो बॉडी को बिल्ड करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है व्हेन अ लेबर फंक्शन वेरी हार्ड। लेबर जो है बहुत हार्ड वर्क करता है तो उसको रिक्वायर किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। क्लियर। नेक्स्ट वी रेड यस्टरडे क्लास हेल्दी हैबिट्स। व्हाट इज अ हेल्दी हैबिट्स? हेल्दी हैबिट्स क्या होते हैं, बैलेंस डाइट, वी टेक अ बैलेंस डाइट, we do exercise, correct, we sit and stand, correct posture and take a rest are essential for keeping ourselves healthy। ये सारे काम अगर हम करते हैं तो ये सब जरूरी है, किस लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट, we take a proper rest and sleep, relax our muscles and give our body that much needed rest। हमारी बॉडी को जितनी रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है हमें वो भी प्रॉपर लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी क्या हो सके, रिलैक्स फॉर्म में आ सके। नेक्स्ट, टुडे टॉपिक इज डिजीज। व्हाट इज डिजीज? When a person won't take a proper nutrient, what will happen? He fallen sick। उसको क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। What is disease? A disease is an abnormal condition in which our body does not function properly। What is abnormal condition? Abnormal conditions हो जाए और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करे, भी है हमारे पास क्या नहीं रहे, प्रॉपर एनर्जी नहीं रहे टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। हमें पास एनर्जी नहीं है किसी भी काम को करने की, हम जो डेली रूटीन में जो भी काम कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, या हमारी बॉडी कहीं से स्वेलन हो गई है, कहीं से ब्लॉक हो गई है, जितने भी हमारे जो डेली फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, वो प्रॉपर वर्क नहीं हो रहे, तो इन सब रीजंस की वजह से हमें क्या हो जाती है, डिजीज। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। A disease is an abnormal condition in which our body does not function properly। डिजीज वो abnormal condition है जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाती है प्रॉपर। क्लियर। डिजीज कैन अकर ड्यू टू अ लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट। हमारी डाइट के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होने के कारण क्या होती है, डिजीज। क्लियर। दे में ऑल्सो अकर ड्यू टू जर्म्स। ये किस लिए हो जाती है, क्योंकि एक तो फर्स्ट रीजन क्या है कि एक तो न्यूट्रिएंट की कमी होगी तब भी हमें डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट, कुछ जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तब भी हम क्या फील करते हैं, वी फॉल इन सिक, इल, हम बीमार महसूस करते हैं, है ना। तो हमारे दो रीजन है डिजीज, हमारी डिजीज होने के। एक तो क्या हो गया, हमारी डाइट के अंदर ऑल न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है। सेकेंड, जर्म्स के कारण। There are two type of disease. How many type of disease? There are two type of disease, non-communicable and communicable disease. Clear? Non-communicable and communicable disease. What is non-communicable disease? The disease do not pass through from one person to another person are called non-communicable disease. The disease that do not pass through one person to another person are called नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसी डिजीज जो वन पर्सन से अदर पर्सन से स्प्रेड आउट नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज।
So non-communicable disease are caused due to a lack of particular vitamin and minerals in the body. Non-communicable disease कब cause होगी? जब particular कोई भी vitamin या mineral की हमारी body के अंदर क्या हो जाएगी? कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज होती है, ऐसी डिजीज को व्हाट वी कॉल दिस डिजीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज. Some deficiency disease are shown in the figure below. First one is scurvy, second is rickets, third one is goiter. Non-communicable disease, what we read this disease not spread one person to other. Suppose कि कोई वन पर्सन है, वो अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी को नहीं इनटेक कर रहा है, क्लियर है? तो विटामिन सी को इनटेक नहीं कर रहा है, तो कौन सी डिजीज होगी? विच डिजीज अकर? स्कर्वी डिजीज अकर, क्लियर है? लेकिन उसके पास में जो पर्सन बैठा है, वो अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी प्रॉपर ले रहा है, तो विटामिन सी जब वो प्रॉपर ले रहा है, तो फर्स्ट पर्सन को विटामिन सी की डेफिशिएंसी है और सेकंड पर्सन में विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं है, तो स्कर्वी डिजीज किसको होगी? फर्स्ट पर्सन को होगी. अब अदर पर्सन के अंदर जब विटामिन सी अवेलेबल है, तो क्या उसको वन पर्सन से अदर पर्सन में फैलेगी? ऑब्वियस नॉट. सो ये जो डिजीज है, वो वन पर्सन टू अदर पर्सन नहीं स्प्रेड आउट होती है. तो सो वी कॉल अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन सी डिजीज आती है? डेफिशिएंसी डिजीज आती है, क्योंकि वो किसी की बॉडी के अंदर किसी भी विटामिन की, मिनरल की, प्रोटीन की किसी की भी कमी होगी, वो सिर्फ उसकी बॉडी के अंदर होगी, ना कि अदर पर्सन के अंदर होगी. क्लियर? फर्स्ट इज स्कर्वी. Scurvy, when any person did not take a vitamin C properly, so that person call the scurvy disease. उसको क्या हो जाएगी? स्कर्वी डिजीज हो जाएगी. अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स डिजीज. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा? हमारी बोन्स जो है बहुत ही वीक हो जाती हैं, बेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं और इस तरीके से दिखाई देने लग जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज गोइटर. गोइटर जो है एक मिनरल है, आयोडीन. गोइटर डिजीज कब होती है? मिनरल, एक मिनरल होता है कौन सा? आयोडीन. अगर अब हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमें कौन सी डिजीज होगी? गोइटर डिजीज होगी. क्लियर? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर रिलेटेड टू इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स. जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से होती है, हमारी इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट के कारण. हम बैलेंस डाइट नहीं लेते, हम हेल्दी फूड नहीं लेते, तभी हमें कौन सी डिजीज होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हुज डाइट इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी. अगर एक पर्सन की डाइट में विटामिन डी की क्या है? डेफिशिएंसी है, तो मे सफर, वो कौन सी डिजीज से सफर होगा? रिकेट्स डिजीज से. Cigarette smoking and chewing of tobacco also lead to harmful non-communicable disease like cancer. अब कोई वन पर्सन है, वो सिगरेट पी रहा है, सिगरेट स्मोक कर रहा है, तंबाकू को च्युई कर रहा है, तो क्या होगा? वो सफर हो जाएगा कौन सी डिजीज से? कैंसर डिजीज से. अब जो पर्सन है स्मोकिंग कर रहा है या टबैको को च्युई कर रहा है, तो जो टबैको है उसके हार्मफुल इफेक्ट उस पर्सन को ही होंगे, अदर पर्सन या जो पास में जो पर्सन है उसको तो नहीं होंगे. इसीलिए ये जो डिजीज है, वो कौन सी डिजीज होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो हमने क्या रीड किया? तो ये कैंसर है. कैंसर डिजीज कैसी डिजीज है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. Non-communicable disease. Some deficiency disease and their symptoms are given in the table. Look at this table. Some examples are there. Deficiency disease और which mineral and which vitamins are deficient. कौन सा मिनरल और कौन से जो विटामिन हैं वो उनकी यहाँ पर कमी है. What symptoms are there? Which disease they are suffer. All things we read. Okay. First one is deficiency disease. Name of deficiency disease, night blindness. What we call night blindness. This disease cause deficiency of vitamin A. ये disease कब होगी? जब deficiency होगी किसकी? Vitamin A की. Symptoms. Person not able to see and dim light. Person क्या होगा? नहीं able होता किसके अंदर? Dim light में. Food rich in vitamin and mineral. Green leafy vegetables, carrot, papaya, mango,
मिल्क एंड एग yolk. अब इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए व्हाट दे आर सोर्सेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, papaya, mango, milk and egg yolk. These all food items have a vitamin E. Clear? They are rich source of vitamin A. Clear? Second one is berry. Deficiency disease का name second है berry. Which vitamin deficiency होगी जब कौन सी disease होगी? Berry vitamin B1. What they are symptoms? Symptoms are person has weak muscles and nerve and get cramps. ऐसे पर्सन में जिसमें विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी होगी उस पर्सन की क्या हो जाएगी, जो मसल्स हैं वो क्या होंगी, वीक होंगी, उसकी नर्व्स जो होती है वो भी वीक हो जाती है, और गेट क्रैम्प्स. कई बार आपने देखा होगा पैर बहुत टाइट हो जाता है, क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाता है, वो सब किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन. What are their food sources? Unpolished rice, cereals, milk, pea and meat. Unpolished rice, cereals, milk, pea and meat. When we take this type of food, we fulfill the requirement of vitamin B1. Clear? Scurvy. Scurvy. Scurvy, when any person and any person died deficient of vitamin C, he may suffer scurvy disease. What their symptoms? Bleeding of gums and swelling of joints. क्या होगा? गम्स में से ब्लीडिंग आना, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, एंड जो गम्स हैं या जॉइंट्स हैं वहां पर क्या हो जाएगी? स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है. एंड देयर सोर्सेज आर एप्पल, ऑरेंज, लेमन, टोमेटो एंड आंवला. जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं यानी खट्टे फ्रूट जितने भी होंगे वो सारे के सारे किसके सोर्स होंगे? विटामिन सी के सोर्स होंगे. क्लियर? नेक्स्ट वन इज रिकेट्स. रिकेट्स डिजीज अकर होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. रिकेट्स डिजीज अकर होगी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. क्लियर? सिम्टम्स सॉफ्ट बोन्स एंड बॉ लेग्स. बोन्स क्या हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं और बैंड हो जाएंगी legs की. What are their sources? Their sources are milk and fish. Sunlight help our body to make vitamin D. विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं मिल्क और फिश तो है ही. विटामिन डी हमें डायरेक्ट किससे मिलता है? वी टेक विटामिन डी डायरेक्ट फ्रॉम सनलाइट. सनलाइट हेल्प आवर बॉडी टू मेक विटामिन डी. सनलाइट हेल्प करती है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी को फुलफिल करने के लिए. क्लियर? नेक्स्ट वन इज गोइटर. गोइटर जो है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स. किसकी डेफिशिएंसी से? मिनरल की डेफिशिएंसी. विच मिनरल? दिस मिनरल इज आयोडीन. अब हमारे अवर बॉडी डेफिशिएंसी, अब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी? आयोडीन की. तो हमें कौन सी डिजीज होगी? गोइटर. एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड इन नेक रीजन. नेक रीजन से जो हमारी ग्लैंड है वो क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी. इसको फुलफिल करने के लिए हमें आयोडाइज सॉल्ट को इनटेक करना चाहिए एंड सी फूड को इनटेक करना चाहिए. वी शुड इनटेक आयोडाइज सॉल्ट एंड सी फूड. नेक्स्ट वन इज एनीमिया. एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से. व्हाट इज आयरन? आयरन इज अ टाइप ऑफ अ वन मिनरल. क्लियर है? तो आयरन को इनटेक कर नहीं होने के कारण या इसकी डेफिशिएंसी होने के कारण द डिजीज कॉज एनीमिया. What they are symptoms? Person get tired easily and looks pale. जो ऐसा पर्सन है वो जल्दी टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, एंड लुक्स पेल, और उसकी जो बॉडी का जो कलर है वो थोड़ा पेल हो जाएगा. पेल मीन्स येलोइश हो जाएगा. क्लियर? when we take spinach, brinjal, jaggery, apple, guava and meat, we fulfill the सोर्स ऑफ आयरन. हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होगी आयरन की वो हम क्या करेंगे? फुलफिल कर लेंगे इन सोर्सेज को लेकर. क्लियर है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से विच डिजीज? नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन बी1 बेरी. विटामिन सी स्कर्वी. विटामिन डी रिकेट्स. आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर. आयरन एनीमिया. क्लियर है? Next one is communicable disease.
The disease that can spread from one person to another are called communicable disease. Which disease spread from one person to another person are called communicable disease. ऐसी disease जो one person से another person पे spread हो जाए, ऐसी disease को हम क्या बोलते हैं? Communicable disease. Communicable disease caused by germs, bacteria, protozoa, viruses. Nowadays, we look at we look all over the COVID-19 is spread out so fastly because COVID-19 disease is a communicable disease. Okay, COVID-19 is spread from aerosol. COVID-19 spread from aerosol. What is aerosol? Aerosol is a air and water droplet. Air के अंदर water की जो droplets होती हैं, when we sneeze, when we cough, तो aerosols यानी कि water की जो droplets हैं, वो air के अंदर जब हम sneeze करते हैं या cough करते हैं, उस time पे क्या आ जाती हैं? Environment में आ जाती हैं, spread out हो जाती हैं. When other person come their contact उन aerosol के यानी जो भी ड्रॉपलेट्स हमारे माउथ से या नोज से बाहर आई है उन एरोसोल्स के कांटेक्ट में अदर पर्सन आ जाता है तो उसको भी वो डिजीज हो जाती है. तो COVID-19 आल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज. The disease that can spread from one person to another are called communicable disease. Communicable disease are caused by germs. Some of the communicable disease caused by bacteria, viruses, protozoa and fungi आर लिस्टेड बिलो. नीचे आपको इन सबके डायग्राम दिए हुए हैं और ये भी शो किया हुआ है कि क्या चीज बैक्टीरिया है, कैसा वायरस है. आपने ये वायरस का डायग्राम, कोविड-19 का यही वायरस, इसी टाइप का वायरस का डायग्राम दिखाई देता है. ये प्रोटोजोआ, दिस डायग्राम इज फंजाई. क्लियर है? बैक्टीरिया. इस पार्ट पे क्वेश्चन कैसे आएगा? नेम टू, राइट टू डिजीज नेम caused by bacteria, two disease name caused by virus, two disease caused by protozoa, two disease caused by fungi. Clear है? So two disease caused by bacteria. Which one is? This one is plague, tuberculosis, typhoid, pneumonia, and cholera. There are 5 examples are there. You learn at least 2. Okay, plague, tuberculosis, typhoid, pneumonia, and cholera. Next one is virus. Virus caused a disease common called polio, measles, chickenpox, flu, and AIDS. Protozoa disease. First one is malaria, Kala Azar, and amoebic dysentery. Fungi cause disease, infection of skin, and athlete food. I think all topics are clear. What is disease? A disease is an abnormal condition in which our body does not function properly. Clear? There are 2 types of disease, non-communicable and communicable. Clear? Non-communicable disease. What is non-communicable disease? The disease that do not pass from one person to other person. Clear? Or what is no communicable disease? The disease that can spread from one person to another person. Clear?